Good morning, student. Today we are going to start the chapter Resource and Development. What is the definition of resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. Okay, resource is the three-dimensional process and human is in the center. Human interact with nature through a proper technology and a proper way. Here institution means way. Okay, thus anything can be transformed into the resource. Again listen, human being interact with their environment or nature with a proper technology. Technology may be tool, technology may be idea, technology may be machine, anything which are used for generation of resource is the technology. Technology means how. Okay, technology means how. Now we are going in the classification of resources. Resources are classified into two main categories: natural resource and human resource. Natural resources are classified into two subcategories, that is renewable and non-renewable. And now renewable resources are classified into two categories again: continuous or flow resource, example wind and water, and biological resource. Now biological resource further classified into two categories: natural vegetation and wildlife. Okay, and non-renewable resources are classified into two categories: one recyclable resource, another non-recyclable resource. Recyclable resources are the metal. Recyclable resources are the metal. Non-recyclable resources are fossil fuel. Coal, petroleum, natural gas are kept under the fossil fuel, and fossil fuels are mainly restricted in the or only restricted in the sedimentary rock. Fossil fuels are non-renewable in nature because it takes millions of years or thousands of years to be renewed, and this is non-renewable. And fossil fuels are mainly restricted into the sedimentary rocks. Okay, now major category another was the human resource. Human resource is further classified into two categories: structures and institution. Quantity and quality of human structure and institution, this is the organization, and quality and quantity of population. Okay, thank you. Now come to study classification of resources one by one. Types of resources on the basis of origin. Biotic resources on the basis of origin classified resources are classified into biotic and abiotic. Biotic resources, these resources are obtained from biosphere and have life, such as human being. Flora, fauna. Flora means vegetation and fauna means animals, fisheries, livestock, etc. Abiotic resources, all those things which are not composed of sorry all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, or all those things which have no life are called abiotic
resources or the non-living element in the environment or nature is known as abiotic resources. Abiotic resources are land, water and air, that means atmosphere, lithosphere and hydrosphere. They don't have life, but they are the life supporting system on the earth. Okay, here examples are rocks and minerals. Okay, on the basis of adjustability, adjustability means खत्म होने के आधार पर, मतलब इसका एंडिंग के आधार पर. तो एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस, these are inexhaustible, renewable resources are inexhaustible. Now study the resources which can be renewed or reproduced by the physical, chemical and mechanical process are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. Okay. That is mentioned in figure number 1.2. Now come in the figure number 1.2. Where is figure number 1.2? This is the figure number 1.2. Here it is mentioned. Figure number 1.2. Here it is mentioned. Okay. Non-renewable resources, these occurs over a very long geographical time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation, or these resources takes millions of years to be renewed. Some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhaust with their use. The resources which gets exhaust with their use is known as exhaustible, and the resources which can be renewed is known as inexhaustible or renewable. Okay. Now classification of resources on the basis of ownership. Classification of resources on the basis of ownership. Earlier we have learned in the class 8 or also in class 10 it is mentioned the chapter manufacturing. In manufacturing industries are classified into 4 categories: private, public, joint and cooperative. Student used to mistake here. They write about the resources also on the basis of ownership in that way. No, this way is another. It is individual resource, it is community resource, then it is national resource, and after that international resource. Now study one by one. Individual resources, these are also owned privately. In individual resource, or we can write it personal resource also, they are also owned privately or by individual. May farmer own land which is allowed to them by government against the payment of revenue. तो फार्मर के पास many farmer own land which are allotted or which is allotted to them by government against the payment of revenue. तो गवर्नमेंट रेवेन्यू पेमेंट के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज लगता है. इसके बाद ईयर बाय ईयर उसका टैक्सेशन रेवेन्यू देना पड़ता है. In villages there are people with the land ownership, but there are many
हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, अर्बन पीपल का प्लॉट होता है, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, पास्चर, लैंड, पॉन्ड, वाटर, वेल एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ resources ownership by individual. Make a list of resource owned by your household. आपके घर में कौन कौन सा रिसोर्स है जो इंडिविजुअल है उसका लिस्ट बनाइए। यहाँ पर एक आया है पॉन्ड और वेल। ये इंडिविजुअल रिसोर्स भी हो सकता है, किसी का पर्सनल तालाब भी हो सकता है और कम्युनिटी रिसोर्स भी हो सकता है। ओके, पॉन्ड और वेल। ओके, now come in the community resources. Community owned resources, there are resources which are accessible to all member of the community. Village commons like grazing ground or grazing field, burial ground, that means graveyard, then village pond, here pond is also village pond, individual में भी pond देखे तो यहाँ भी है, etc. Public park, picnic spot, playground, urban areas, are de facto accessible to all the people living there. Are de facto accessible, facto accessible, are de facto accessible means equally distributed. Here de facto accessible means equally distributed, that means all the people who live in that community or that village have equal right over the resources that are kept under or come under the community resources. Okay, now next is the national resources. Technically all the resources belong to the nation. Country has legal power to acquire even private property for public good. तो कंट्री को पावर है, किस लीगल पावर है, लीगल अथॉरिटी है कंट्री को टू एक्वायर, वो एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, एक्वायर कर सकता है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी फॉर पब्लिक गुड और पब्लिक वेलफेयर, मतलब जनता के भलाई के लिए, जनता के काम के लिए इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है। दैट मीन्स एनीथिंग in the territory of any nation or country is come under the national resource. Okay, you might have seen road, canal, railways being constructed on fields owned by some individual. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, that is land requisition or acquisition, all the mineral, water resources, forest, wildlife and within the political boundaries, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical mile, 12 nautical mile that means 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है ओशनिक एरिया फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरेस्ट्रियल वाटर, टर्म्ड एज टेरेस्ट्रियल वाटर, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल में तो किसी भी देश का सीमा के अंदर होना है, टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेस therein belong to a nation, that means 12 nautical mile तक सी और उसके बाद जो भी रिसोर्सेस है कंट्री में वो कंट्री ओन्ड है। इवन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी एक्वायर करने का अधिकार है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को या फिर जिला परिषद को या विलेज पंचायत को पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे
विलेज पंचायत क्या करेगा, वो लैंड एक्वायर करके वहाँ गार्डनिंग कर सकता है, कैनल बना सकता है, नहर बना सकता है, पब्लिक में वेलफेयर ट्यूबवेल बना सकता है। ओके, तो बहुत सारे काम कर सकता है। ओके, नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical mile of the exclusive economic zone EEZ belong to open ocean, and no individual or no country can utilize these without the concern of international institution। जैसे क्या बोलते हैं, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन, उसका अधिकार में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसका बिना कंसर्न का, उसका बिना परमिशन का EEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ओशनिक रीजन में बियॉन्ड मतलब बाद होता है 200 नॉटिकल माइल के बाद। ओके, 200 नॉटिकल माइल के बाद, 200 नॉटिकल माइल के बाद होगा उसको वो रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स। इसी तरह अंटार्कटिका भी इंटरनेशनल रिसोर्स है, स्पेस भी है इंटरनेशनल रिसोर्स, स्पेस में स्काई में जो स्पेस है वो भी इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट देयर राइट मेन मैग्नीज नूडल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन from that area which lies beyond the EEZ exclusive economic zone। Identify some other resources which are international in nature। तो आप लोग भी बहुत सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए जो इंटरनेशनल है नेचर में। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भाग में बांटा गया है। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल, एंड सेकंड इज डेवलप्ड, एंड थर्ड इज स्टॉक। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक क्या है। मटेरियल इन एनवायरनमेंट, दैट मीन्स मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट मीन्स नो, मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट दैट मीन्स नो। ओके, नो के नो डब्ल्यू, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। तो मटेरियल जो इन्वायरमेंट में है जिसमें क्षमता है, पोटेंशियल है टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। ओके, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नो ओके है स्टॉक में, हाउ नहीं है, हाउ मीन्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को हाउ हम बोल रहे थे पहले भी। ओके, आर यूज, तो जब पता ही नहीं है कैसे यूज करना तो यूज कैसे होगा, ये नहीं है, दिस इज स्टॉक, STOCK स्टॉक। नो पता है मतलब ये थिंग है, इसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड कर सकता है, बट हाउ टू यूज पता ही नहीं है, हाउ टू यूज पता ही नहीं है, कैसे यूज करना है पता नहीं है। ये पता है जैसे कि हम लोग को पता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट उतना बड़ा पैमाना पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके यूज कर सकते हैं। हम लोग को ये भी पता है कि हाइड्रोजन इज द सोर्स ऑफ very powerful and very huge amount of energy, but we can't have appropriate or proper technology to utilize the hydrogen from water। ओके, तो इसीलिए वो स्टॉक में आ जाएगा। ओके, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर इज कंसिडर्ड इन स्टॉक। तो फिर से देखते हैं स्टॉक को। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव the potential to satisfy human need, but human being do not have appropriate technology to assess these are। human being के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज का यूज कर सके। these are
दीज आर इंक्लूडेड अमंग द स्टॉक, इसको स्टॉक में हम लोग इंक्लूड करेंगे। दीज आर इंक्लूडेड अमंग द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वाटर is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used a rich source of energy, but we do not have advanced technology or appropriate technology know how दोनों आया to use it for this purpose, hence it can be considered as stock, इसलिए इसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, इसलिए हम लोग स्टॉक कहेंगे। नो टू हाउ, कैसे यूज करना है जानते तो है बट उसका यूज नहीं पता है, यूज नहीं पता है। नो हाउ, ओके। तो फिर से स्टॉक का देख लीजिए, STOCK, एबेबिलिटी है, ओके, एंड नो हाउ नहीं है तो यूज भी नहीं होगा। ये नया कॉन्सेप्ट दिया आपको, सिर्फ ये है, ओके। जब नो हाउ ये नहीं है, कैसे करना है ये नहीं पता है, ओके। अब देखते हैं रिजर्व। रिजर्व में एबेबिलिटी है, इसमें नो हाउ भी है, इसमें यूज अभी नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए रख दिया गया है, तो ये रिजर्व हो गया, ओके। इसमें यूज अभी नहीं करे, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया, ये रिजर्व हो गया। अब एक आध टर्मिनोलॉजी आगे आता है जो इसका एडवांस होकर बनता है, वो रिसोर्स है, जो यहाँ नहीं मेंशन है। तो स्टॉक, रिजर्व एंड रिसोर्स। रिसोर्स इसमें एबेबिलिटी यस है, नो हाउ ये भी यस है, और जब किसी भी चीज़ को यूज कर लिए तो ऑटोमेटिकली इट विल बी रिसोर्स, ओके। तो अब हम लोग स्टॉक देख लिए थे, अवेलेबल है थिंग इन्वायरमेंट में, नेचर में, उसमें पोटेंशियल हम लोग का नीड को सेटिस्फाई करने का, बट हम लोग को तरीका नहीं पता है कैसे यूज करना है, या फिर उतना भास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हम लोग के पास, तो वो क्या है, स्टॉक है। अब देखते रिजर्व क्या है। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये सबसेट है स्टॉक का, मतलब उसके बाद वाला थोड़ा इवोल्यूशन हो गया। पहले हम लोग को यूज नहीं पता था कैसे हम लोग यूज करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था अप्रोप्रिएट, बट जब रिजर्व कब होगा, जब स्टॉक बहुत सारा डेवलपमेंट के बाद, बहुत सारे रिसर्चेस के बाद हम लोग को किसी भी थिंग को यूटिलाइज करने का के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाए और टेक्नोलॉजिकली ईजिली अवेलेबल हो, तो वो रिजर्व में आएगा। और जब इसका यूज करना स्टार्ट कर देंगे, रिजर्व में सिर्फ वो रिजर्व है रखा हुआ, अभी यूज नहीं हो रहा, जब उसका यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो वो रिसोर्स बन जाएगा। फिर से देखते हैं, रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। तो एग्जिस्टिंग टेक्निकल जो अब उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। स्टॉक में ऐसा नहीं था, देखिए, डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, नो हाउ यहाँ था ही नहीं, बट यहाँ पर देखिए, रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द यूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, इनका यूज स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तक यूज नहीं किए हैं, यूज स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व है। यूज स्टार्ट हो जाए तो रिसोर्स बन जाएगा। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ओके। पुट प्रजेंटली, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी, हम लोग रिवर पावर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बहुत सारी जगह बन भी रहा है, बट उतना बड़ा पैमाना पर नहीं बन रहा जितना बड़ा पैमाना बनना चाहिए। हम लोग फ्यूचर में इससे बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी और यूज करेंगे, ओके। बट presently it is being utilized only to a limit extent, ओके। देखिए, but presently it is being utilized only a limited extent, thus the water in the dam, forest etc. is
reserve which can be used in the future. Okay, now come स्टॉक देख लिए, रिजर्व देख लिए, रिसोर्स तो चैप्टर ही है इसलिए रिसोर्स उसके आगे के वैल्यू से नहीं देखेंगे। अब हम लोग रिटर्न आते हैं पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप रिसोर्स में, ये दोनों में डिफरेंस भी आएगा और आप पहले पढ़े भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स में कंफ्यूज मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है दोनों। ओके, रिसोर्सेज विच आर फाउंड in a region, resources which are found in a region but do not have been utilized for do not have been utilized, अभी तक इसका यूटिलाइज नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल में संभावना यहाँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव बीन नॉट बी डेवलप प्रॉपरली, इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। ओके, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल में संभावना होना पोटेंशियलिटी है। गुजरात एंड राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट में यहाँ विंड एनर्जी सोलर एनर्जी का भरमार है, बट उतना पैमाना पर उतना लार्ज स्केल पर हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। ओके ओके, ठीक है। नाउ डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड और 8 में पढ़े थे रिसोर्सेज विच आर थ्रोली सर्वेड। ओके, अब पोटेंशियल रिसोर्स में था रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ रीजन बट नीड डिटेल सर्वे, ये हम लोग 8 में पढ़े थे। यहाँ थोड़े दूसरे तरह से लिखा हो, 8 वाला भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डेवलप रिसोर्सेज में रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, इनका जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो डिटरमाइंड है यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, मान लिया जाए कि हिमालयन रीजन से ऑयल का एक्सकेवेशन हुआ, तो ऑयल किस क्वालिटी का होगा और किस क्वांटिटी का, कितना क्वांटिटी में मिलेगा। मान लीजिए 10,000 करोड़ लीटर ऑयल हम लोग ऑब्टेन किए, मैंने क्रूड ऑयल कच्चा तेल, और उसको जब रिफाइन करेंगे हम लोग तो उससे हम लोग को 8,000 लीटर फ्रेश ऑयल सब मिलाकर, मतलब कैरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम और फ्रेश पेट्रोलियम जो एरोप्लेन में यूज होता है, और फ्रेश कैरोसिन जो क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है, इस तरह सब मिलाकर मतलब 10,000 गैलन अगर हम लोग ऑब्टेन किए तो उससे 8,000 गैलन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब क्वांटिटी कितना, 10,000 में 8,000, 8,000 आउट ऑफ 10,000। क्वांटिटी भी अच्छा, जब ये क्वांटिटी अच्छा जब हुआ तो उसका क्वालिटी भी अलग अलग क्वालिटी बताया ना, जैसे फाइन पेट्रोलियम जो हवाई जहाज़ में, देन पेट्रोलियम, देन डीजल, देन फाइन कैरोसिन, क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है फाइन कैरोसिन का, देन कैरोसिन। ओके, तो इस तरह से बढ़ते जाते हैं। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ रीजन बट देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टिल नाउ, उनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं। अभी हिमालय में एक्सकेवेशन करने गए, 10,000 करोड़ रुपये लगा दिए, 10,000 गैलन पेट्रोलियम निकला भी, और उसको जब रिफाइन करने गए तो उससे 1,000 लीटर अच्छा पेट्रोलियम निकला, तो 9,000 लीटर बर्बाद हो गया। वो तो सिर्फ गंदगी था, पानी था, इवापोरेट हो गया, जो भी था। तो यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी एस्टिमेट नहीं था तो घाटा हो गया, इसलिए डिटेल सर्वे चाहिए। फिर से सुनिएगा पोटेंशियल रिसोर्स का जो 8 में था, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन ए रीजन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज नॉट बीन एस्टिमेटेड टिल नाउ बिकॉज इट नीड डिटेल सर्वेइंग। ओके, अब डेवलप रिसोर्स में क्या है, 8 का बुक में रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ रीजन और विच आर सर्वेड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ये 8 का बुक में भी था, 10 का भी है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. तो रिसोर्स का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पर और उसका फैसिबिलिटी पर, मैंने पहुंच पर, क्या एवेबिलिटी है टेक्नोलॉजी का, या फिर लोग
एफर्डेबिलिटी है कि नहीं, लोग एफर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, कंट्री एफर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं रिसोर्स, इस पर डिपेंड करेगा। ओके, फिर से हम दोनों को पढ़ते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप रिसोर्स को। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have been developed properly. अब इसको properly develop करना होगा तब ये डेवलप रिसोर्स बनेगा, नहीं तो पोटेंशियल में रहेगा। इसमें डिटेल सर्वे चाहिए। क्यों डिटेल सर्वे चाहिए? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेट करने के लिए, आकलन करने के लिए। किसका आकलन करना है? कितना क्वांटिटी में मिलेगा, किस क्वालिटी में मिलेगा। बट डेवलप रिसोर्स के साथ ऐसा नहीं है, उसमें ऑलरेडी डिटरमाइंड है। देखिए, रिसोर्सेज विच आर सर्वे, जिसका सर्वे हो गया है, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उनका क्वालिटी भी डिटरमाइन है, किस क्वांटिटी में होगा वो भी डिटरमाइन है, हैव बीन determined for utilization, everything is determined, that's why it is under the developed resource. Okay, the development of resources depend on technology and level of their feasibility. Development of resource depends upon the development of any resource depend upon the technology or available technology. Okay, and the level of their feasibility, और वो जो टेक्नोलॉजी है उसका वो फेसिबल है कि नहीं, मतलब एफोर्डेबल है कि नहीं, एसेसिबल है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। ओके, फिर से स्टॉक को एक बार पढ़ रहे हैं। मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस, दीज आर included among the stock. For example, water is a component of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for the purpose. बस हम लोग पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। हैंस इट कैन बी कंसिडर जी स्टॉक। अब रिजर्व क्या है? रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ रिसोर्स, ये इवोल्यूशन है रिसोर्स का, सॉरी स्टॉक का। तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द यूज, with the help of existing टेक्निकल नो हाउ। इसका इसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैसे यूज करना है ये बताया गया है। बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड, इनका जो यूज है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व है। यूज स्टार्ट नहीं, रिजर्व है, रिजर्व रखा हुआ है, कभी भी यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर फ्यूचर, फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब फ्यूचर जनरेशन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। रिवर वाटर can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. रिवर जो वाटर है उसमें इनॉर्मस प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने का। टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है बट हम लोग उसको लिमिटेड एक्सटेंट में ही यूज कर पा रहे हैं। ओके, दस वाटर इन डैम्स and forest etc. is reserve which can be used in future. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अभी पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्लास में क्या? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्स ज़रूरी है और लाइफ का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्स ज़रूरी है। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेस आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा विश्वास किया जाता था कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर का फ्री गिफ्ट था, इसलिए नेचर तो दे रहा है, जितना इसका यूज करना है कीजिए, नेचर तो देते रहेगा। बट ये हम लोग का मीथ था, हम लोग का भ्रम था, ऐसा हुआ नहीं। अब भ्रम टूट गया, अब रिसोर्स क्राइसिस हो गया।
इकोलॉजिकल रिसोर्स क्राइसिस हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स क्राइसिस हो गया। ओके, भ्रम टूट गया। इसी तरह है, पापा तो बहुत कमाते हैं, बच्चा लोग उड़ाओ, जितना उड़ाना है खर्च करो, और जब पापा रिटायर हो जाते हैं, कमाई कम हो जाता है या बच्चा को नौकरी नहीं लगता है, तो फिर क्या होता है, फिर पता चलता है। इसी तरह कोई भी रिसोर्स है उसका हम लोग को लिमिटेड ही यूज करना चाहिए, जितना नीड है, जितना नीड है। वी हैव टू मिनिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, it was believed that resources are the free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, जैसे तैसे बिना सोचे समझे इसका यूज किया, एंड दिस हैज लीड टू अ फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब इसका बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ ह्यू इंडिविजुअल। डिप्लेशन किया गया रिसोर्सेज का, इसका दोहन किया गया, शोषण किया गया, एक्सप्लोटेशन किया गया रिसोर्सेज का, कुछ लोगों का या कुछ कंट्री का ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए। ओके, अब देखिए, एकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कुछ ही हाथों में रिसोर्स चला गया, कुछ ही कंट्री इसका मालिक बन बैठा। ओके, विच इन टर्म डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट। इस सोसाइटी को दो धड़ में बांट दिया, दो सेगमेंट में बांट दिया, पुअर एंड रिच, दैट इज हैव एंड हैव नॉट। रिच एंड पुअर, रिच मीन्स हैव, जिसके पास सब कुछ है वो अमीर है, अमीर और अमीर बनते जाता है, गरीब और गरीब गरीब बनते जाता है। ओके, टू सेगमेंट, दैट इज हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर। ओके, now third, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. ओके, अब तो ये सब प्रॉब्लम्स हुआ, अब आगे क्या करना है देखते हैं। अब सोच रहे हैं कि रिसोर्स को कैसे बचाया जाए, देखते कैसे बचाया जाए। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल मीन्स बराबर बराबर, बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स विकासशील क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग को अपना नीड को भी सेटिस्फाई करना है। ये नहीं कि वहाँ पर हम अपना नीड को रोक दें और सारा का सारा बचा ले फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे दो रोटी खाते हैं तो दो ही खाना है, पहले दो खाते थे, चार लेते, दो फेंकते थे, वैसा नहीं है, दो ही खाना। ये नहीं कि दो का जगह एक खाएंगे और फ्यूचर, वो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हुआ। सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना नीड है रिसोर्स का उतना यूज करना है और अपना डेवलपमेंट करना है। अब बाकी जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, बाकी जो बर्बादी कर रहे थे, उसको मिनिमाइज करना है ताकि फ्यूचर का नीड को भी पूरा हो सके। तो फिर से इसको पढ़ते हैं ये पैरा को। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, और विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, अगर जो ये डिप्लेशन है रिसोर्सेज का, जो दोहन है, शोषण है, ये अगर चलता रहा फ्यू इंडिविजुअल के द्वारा या फिर फ्यू कंट्रीज के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा या कुछ देशों के द्वारा, तो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। हम लोग का जो प्लेनेट का भविष्य वो खतरा में, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। देयरफॉर, तब क्या करना है, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओके, sustainable existence for all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. Sustainable existence means विकासशील अस्तित्व, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो रियो डी जेनेरियो समिट से है, जो ब्राज़ील में है। ये समिट 1992 में हुआ था। देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग और हार्मिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द
नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब डेवलपमेंट का फ्यूचर प्रेजेंट का डेवलपमेंट तो करना ही है, बट ये नहीं कि हम लोग को फ्यूचर का डेवलपमेंट या फ्यूचर का नीड का कीमत चुकाना पड़े, फ्यूचर का नीड को भी ध्यान रखना। ओके, अब रियो डी जेनेरो समिट देखते हैं। द रियो डी जेनेरो आर्ट समिट 1992 इन जून 1992, मोर देन 100 हेड्स मीन्स 100 लोग आए, 100 प्रतिनिधि आए कंट्री का, ऑफ स्टेट्स में से हेयर कंट्रीज, मीट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट। ये फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट था। द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ निर्णय लिया गया। ओके, द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन इंडोर द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसमें इंडोर किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, एंड एडप्टेड द एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 21 एजेंडा सेट करना है पूरे ग्लोब के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे अर्थ के लिए। इवन अलग अलग कंट्री को भी अपना लोकल नीड को देखते हुए, अपना कंट्री लेवल का नीड को देखते हुए 21 एजेंडा सेट करना है कि अपना कंट्री का वो डेवलपमेंट कैसे करें, आप फ्यूचर का भी ध्यान दें। इवन स्टेट को भी यही देखना है कि अपना लोकल रीजन को देखते हुए 21 एजेंडा सेट करना है। इवन डिस्ट्रिक्ट को भी यही करना है, इवन टाउन्स के भी करना है, विलेज को भी करना है, हर एक घर को भी यही करना है, और प्रत्येक इंडिविजुअल को भी यही करना है। अब जैसे आप 10 में हैं तो आपके भी यही करना है कि 21 एजेंडा बनाइए, किस तरह से आपका मार्क अच्छा हो, क्या हो, किधर ध्यान देना है, किधर ध्यान नहीं देना है, सब कुछ देखते हुए 21 एजेंडा बनाइए और अपना डेवलपमेंट कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपका जनरेशन का भी डेवलपमेंट होगा। ओके, एडप्टेड 21 एजेंडा फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के लिए 21 एजेंडा। ओके, अब देखिए 21st एजेंडा में जो हम बोले वो बात है कि नहीं है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCED? यूनाइटेड नेशन Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro in Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage. Environmental damage को ठीक ठाक करने के लिए एजेंडा बनाया गया। प्रॉपर्टी का जो लॉस हो रहा था उसको ठीक ठाक करने के लिए एजेंडा बनाया गया। डिजीज़ का जो स्प्रेड हो रहा था, जैसे अभी पेंडेमिक स्प्रेड हुआ, उसको कम करने के लिए एजेंडा बनाया गया। थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट माने सभी लोगों का पक्ष में, सभी लोगों का हित में होना चाहिए। ओके, म्यूचुअल नीड और एक दूसरे से टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, मेडिसिन सबका ट्रांसफ़र करते हुए, एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी चीज़ गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी इन्वेंशन का लिए भी हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हुए, गलती हुआ तो उसको वर्ल्ड के सामने मानना, उसको ठीक करना, या फिर कुछ हम लोग नया बनाए तो वर्ल्ड को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उसको देना है। जैसे अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन है, इंडिया कैसे दे रहा है वर्ल्ड को। ओके, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ ऑन लोकल एजेंडा 21। लोकल गवर्नमेंट भी अपना एजेंडा 21 बना सकते हैं। नॉट ओनली लोकल गवर्नमेंट, अभी हम बोले कि फैमिली भी बना सकते हैं, इवन इंडिविजुअल भी बना सकता है। ओके, द क्लास इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।